Okay, students. So let us start our session today. Last lecture we were discussing about the types of contract on the basis of formation. Okay, student, on the basis of formation, and on the basis of formation. Okay, so we have discussed two or three types of contracts. Let us revise that within 5 minutes. Huh? Acha. So many students are yet to join the session. So before I start my revision, is there any confusion or doubt? अब तक 6-7 लेक्चर हो गए हैं. अगर आप रीड कर रहे हो बच्चों, तो कोई डाउट होगा अब तक के लेक्चर में, नॉट ओनली लास्ट लेक्चर, अब तक के लेक्चर में, तब तक आप लोग क्लियर कर सकते हो. तब तक मुझे लगता है बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे. कोई डाउट है किसी को कुछ अब तक के लेक्चर में? वी हैव स्टार्टेड विथ कॉन्ट्रैक्ट, definition of contract, an agreement enforceable by law. Then we discuss the definition of agreement. We discuss the definition of promise. I hope you remember. Then we discuss the concept enforceability by law. Okay, social contracts and business contract का difference हमने understand किया. Business contract में there is obligation. There is a, you can say, legal obligation. Intention is to create legal obligation. Whereas in social contract, there is no intention to create legal obligation, and so on. तो हमने ऐसा सब बहुत सारा स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था. Okay, I hope you remember some part of it. Then we discussed the difference between agreement and contract. नंबर कितने? So I think no doubts. So let us start our session then. So बच्चों, up to last lecture, in last lecture we were discussing, you can see this diagram, we were discussing the types of contract on the basis of formation. Okay, on the basis of validity or enforceability we have discussed earlier. Now on the basis of formation. So students, on the basis of formation, we have discussed express contract, implied contract, and I think we were discussing quasi contract. Okay, just 2 minutes we revise. But what is express contract? The contract which is made by using words, shabd, either written or spoken. Okay, whether you are giving offer to another person face to face and another person face to face accepts your offer, that is express contract. Or
टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के माध्यम से भी हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, लेटर द्वारा भी हम एग्रीमेंट जब करते हैं तो वी कॉल इट एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है विच इज मेड बाय वर्ड्स, यूजिंग वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन। Okay, so we have already discussed the examples regarding express contract. Then we discussed about implied contracts. But what was the implied contract? The first statement which I used to define implied contract was that implied contracts are those contracts which are not express contracts. Which are not express contracts. I hope you understand. Which are not express contracts. ओके, दिस कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स एक प्रकार से हम देखेंगे तो इस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को शब्दों के मदद से नहीं किया जाता, बराबर है। ये बाय, जिसको हम बोलते हैं ना, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज और बाय एक्शन टेकन बाय पार्टीज हमें समझ में आता है कि हाँ, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। आई होप यू रिमेम्बर, वो सिग्नल वाला मैंने एग्जांपल लिया था। ओके, फिर मैंने आई थिंक एक और एग्जांपल जो आपकी बुक का था, कुली वाला एग्जांपल। तो ये दो एग्जांपल, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो बच्चों यू कैन आस्क दैट डाउट। ओके, सो व्हेन प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन यूजिंग वर्ड्स, अदरवाइज यूजिंग वर्ड्स, we call that promise as implied contract. Okay, वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, व्यक्ति के हाव भाव से, व्यक्ति के कंडक्ट से, व्यक्ति के एक्शन टेकन से हमें पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। एंड ये भी इन्फोर्सेबल है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ पार्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज इन्फोर्सेबल। So next we discuss the tacit contract. As I said, tacit contract are nothing but they are the part of implied contract. You can say that. वो एक प्रकार का implied contract ही है, but silent in nature. The examples of tacit contract are, okay, tacit contract are, we have discussed that two again examples, classical examples. One was withdrawing money from ATM and another was fall of hammer during auction. During auction, fall of hammer, this particular conduct, ये particular act, ये दर्शाता है कि offer has been accepted. I hope you are getting my language. So tacit contract हो चुका है। So शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए किसी particular action को किया जाता है। Okay, we call that as tacit contract. Okay, fall of hammer in an auction sale. Of course, that is tacit contract. And ATM से पैसे withdraw करना, that is also tacit contract. Okay, you can, I said that it is a part and parcel of implied contracts. बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको? यस नो में जरा एक दो लोग आंसर दे दो। Am I audible? Yes. Okay. So I continue. I hope आप सुन रहे हो लेक्चर को एंड कोई डाउट हो तो जरूर पूछेंगे। देन बच्चों वी स्टार्टेड विथ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, व्हाट आई सेड, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है? नॉर्मली ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोग इंटेंशनली नहीं करते। दो लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशनली नहीं होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टी न करके लॉ पार्टियों पर इम्पोज कर देता है। बच्चों जैसे कि मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, ऐसे ही आप जरा आंसर दीजिए यस नो में। आपको कोर्ट ने, मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में एंड जज ऑफ द कोर्ट ने आपको क्या कहा कि आप अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करो एंड विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट आप फॉरेन कंट्री नहीं जाएंगे। तो ये एक प्रकार का ऑर्डर है, ऑर्डर जिसे आपको मानना पड़ेगा। मानते कि नहीं हम लोग?
तो क्या ये जज और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? नहीं, ये एक ऑब्लिगेशन है जो लॉ ने आपके ऊपर इम्पोज किया है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड इम्पोज। इम्पोज करना मतलब क्या? जबरदस्ती आपके ऊपर थोपना। बच्चों, हम जो टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, वो क्या है? गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज करती है, यानी वो टैक्स हमारे ऊपर लगाती है। बराबर है? हमारा मन हो या ना हो, वो टैक्स हम देते हैं। तो सेम वे quasi contracts are nothing but they are the contracts which are imposed by law upon the parties. Otherwise, you know what is real contract. Real contract होता क्या है? एक दो व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक ऑफर देगा, एक एक्सेप्टेंस करेगा, लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होगा, एंड बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है ही नहीं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन होता है, वो दो लोग आपस में एग्रीमेंट करके नहीं करते, बट दोज ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय लॉ अपॉन द पर्सन। That is what I was discussing in the last lecture about the example of finder of lost goods. बराबर है? राह चलते आपको अगर गुड्स मिल जाता है कोई, इफ यू आर अ फाइंडर ऑफ गुड्स, इमीडिएटली आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है। देखो, कोई बोला नहीं आपको, लेकिन आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि मैं ये गुड्स को संभाल के रखूं। ओके, प्रॉपर केयर से संभाल के रखूं। आई मस्ट टेक अटमोस्ट केयर ऑफ दिस गुड्स एंड ट्राई टू फाइंड द ट्रू ओनर ऑफ दिस गुड्स। क्या ये किसी ने बोला क्या आपको? नहीं, बट एक एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ जाती है कि आपको ये गुड्स जो मिला है, इसको संभाल के रखने का अपने पास, या पुलिस स्टेशन जाके देने का, एंड ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करके उसको वापस दे देने का। ओके, सो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। सो लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। मैंने पढ़ा था उसको, तो एक बार मैं आई वुड लाइक टू रीड इट वंस अगेन। ओके, सो लेट अस रीड। एंड इसमें कोई वर्ड आपको नहीं क्लियर हुआ बच्चों, तो यू आर गोइंग टू आस्क मी डाउट्स। ओके, अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, वर्डिंग्स पे ध्यान दो। अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, बट इट रिसेम्बल्स एज कॉन्ट्रैक्ट। जिसको हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एज गुड एज कॉन्ट्रैक्ट। आपने कभी सुना होगा ये शब्द, एज गुड एज कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। सी द पॉइंट, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कौन क्रिएट करता है? दो पार्टीज, ऑफर देने वाला, एक्सेप्टेंस करने वाला। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट दो लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, लॉ ने क्रिएट किया है। दैट इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड between normal contract and quasi contract. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. कल भी बच्चों मैंने ये लाइन पढ़ी थी, आज वापस रिवाइज करा रहा हूं। Such obligations are known as quasi contracts. Okay, in other words, it is contract in which there is no intention on the part of either party to make contract, but law imposes contract upon the parties. लॉ ने इम्पोज किया वो ऑब्लिगेशन। ओके, तो बच्चों मैं रीड कर रहा हूँ विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफ यू हैव एनी डाउट, यू आर गोइंग टू आस्क मी द डाउट। ओके, एंड आई थिंक एग्जाम्पल भी मैंने कल रीड किया था, नहीं किया था तो एक बार रीड कर लेते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स to return them to true owner, or liability of person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of contract even in its remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. These are said to be quasi contracts, quasi contracts. ओके बच्चों, अगर बाय मिस्टेक, जरा मुझे आंसर देना है आपने इसके ऊपर। बाय मिस्टेक मुझे पैसे देने थे राहुल सर को, लेकिन
एक्चुअल में पैसे देने थे राहुल सर को, बट मैंने बाय मिस्टेक वो पैसे बाय मिस्टेक मयूर सर को दे दिए। तो अब बताओ मयूर सर का ऑब्लिगेशन क्या है? टाइप योर आंसर। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। द मनी विच आई हैव पेड टू मयूर सर बाय मिस्टेक, गलती से मैंने कोई पैसा मयूर सर को पे किया जो कि मुझे पे करना था राहुल सर को। तब मयूर सर के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या आ गया? रिटर्न बैक करना है, रिटर्न इट, यस, गिव द मनी बैक बिकॉज इट वॉज पेड अंडर मिस्टेक। तो ये कहीं ना कहीं देखो ना, मयूर सर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया। क्या हमारा कोई एग्रीमेंट था क्या? मैं गलती से पैसे दूंगा तुम वापस कर देना, ऐसा कोई हमने एग्रीमेंट किया था क्या? नहीं। बट लॉ ने यहाँ पर मयूर सर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दिया कि गिरीश ने जो तुमको पैसे दिए गलती से उसको आप वापस कर दीजिए, दैट्स ऑल। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ, यू कैन से, quasi contracts। बच्चों आगे चल के वी आर हैविंग अ फुल टॉपिक ऑन quasi contracts where we will be discussing some, I think, 6 to 7 examples based on quasi contract। okay, I think मैंने पिज्जा वाला एक एग्जांपल दिया था, I hope you remember, that also falls under quasi contract। कि पिज्जा, मैंने पिज्जा आपको गलती से डिलीवर किया, गलती से बाय मिस्टेक, एंड आपने वो पिज्जा कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो अब आपका ऑब्लिगेशन क्या है? पे फॉर इट, दैट्स ऑल, यू हैव टू पे फॉर इट। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, तू काय को लाके दिया मुझे, ऐसा बोलता है क्या कोई? नहीं। जब आपने यूज कर लिया, पिज्जा खा लिया, तो नाउ यू हैव टू पे फॉर इट, दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई थिंक दीप का कोई डाउट है? वापस नहीं किया तो केस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यस, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। बच्चों quasi contracts are valid contracts, and when I use the word valid contracts, हमारा लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट्स को बच्चों एनफोर्स करता है। इसका मतलब मयूर सर ने पेमेंट नहीं किया, पैसे वापस नहीं दिए, तो आई हैव राइट टू सू हिम। दीप, आपने सुना आंसर मैंने क्या कहा? यस, उन्होंने पैसे वापस नहीं किए तो आई हैव राइट टू फाइल सूट ऑन मयूर सर। यस, एनी कंफ्यूजन? आवाज आ रही है मेरी? यस, दीप क्लियर, ओके ओके ओके। तो बच्चों डाउट पूछ रहे हो तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। So let us concentrate now on the next one. We have discussed 3 types of contracts. I hope आप वो simultaneously mind में याद रख रहे हो। Okay. So after express contract, implied contract and quasi contract, the fourth one is e contracts। बच्चों ये मैं आपको नहीं भी पढ़ा हूँ तो भी आज के जनरेशन को ये ऑलरेडी पता है कि नहीं? आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, है ना? ई जनरेशन हो आप लोग, एक प्रकार के ई जनरेशन के बच्चे हो।
है ना, उल्टा हमसे ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी है, आई होप सो। ओके, तो आई थिंक ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मुझे ज्यादा एक्सप्लेन न करना पड़ेगा, यू विल गेट इट इमीडिएटली। बच्चों, वेरी सिंपल मीनिंग। ओके, नाउ-अ-डेज अभी स्पेशली लॉकडाउन के केस में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो भी हो रहे होंगे, वो सारे के सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स ही हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर दे रहे हो लोगों को, सामने वाला आपको व्हाट्सएप के बेसिस पर गुड्स लाके डिलीवर कर रहा है। ओके, डीमार्ट में देखो ना, आप ऑर्डर डाल दीजिए, है ना। हमारे यहाँ पर भी हम किराना स्टोर दुकान वाले को हम लोग व्हाट्सएप पे सामान का लिस्ट भेज देते हैं, है ना। वो 2 घंटे के बाद उसका आदमी आके हमको सामान दे के जाता है, पैसे दे के जाता है। अभी ये आजकल क्या हो रहा है लॉकडाउन की सिचुएशन में, ज्यादातर ईमेल्स, व्हाट्सएप, है कि नहीं, बाकी भी और सारे सोशल मीडिया के जो मेथड्स हैं, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वेबिनार का यूज हो रहा है, अभी हम लेक्चर्स ले रहे हैं ऑनलाइन। तो बच्चों, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, यानी कि एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑफ कोर्स हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे। एंड बच्चों, ऑफ कोर्स दे आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर रिलेटेड टू बिजनेस, इफ दे आर रिलेटेड टू बिजनेस, दैट इज अंडरस्टूड, है कि नहीं। आपने व्हाट्सएप पे बर्थडे पार्टी के लिए किसी को इनवाइट किया, कोई आया नहीं, तो आप केस नहीं कर सकते। इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर, ओके, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। सो ई कॉन्ट्रैक्ट्स पर वी विल नॉट वेस्ट मच टाइम, क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है। ओके बच्चों, सो जस्ट रीड करो, देखो क्या वर्डिंग्स है। When a contract is entered into by two or more parties using electronic means, such as emails, आपको ईमेल, व्हाट्सएप, मैंने ऑलरेडी कहा है कि मालूम है, ईमेल्स इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, आप अमेजोन साइट पर जाते हो, वहां पर प्रोडक्ट को अच्छे से देखकर उसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करके आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो अमेजोन साइट पे जाके। ये क्या, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आजकल इंडिया में बहुत फेमस हो रहा है ये। तो फ्लिपकार्ट, बच्चों ये जो जितने भी फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जोमेटो है, बरोबर है, स्विगी है, इनको आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफर दे रहे हो कि आपको क्या चाहिए, एंड वो आपको सामान डिलीवर करके एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि आज के जनरेशन को ये समझाना बहुत इजी हो जाएगा मुझे कि व्हाट इज ई कॉन्ट्रैक्ट्स, इट्स वेरी इजी। मुझे नहीं लगता इसमें आपको डाउट आना चाहिए बच्चों। सो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिफरेंट पार्टीज पर्सन्स क्रिएट नेटवर्क which are linked to other networks through EDI, ओके, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये सब इलेक्ट्रॉनिक आप बोल सकते हो टर्म्स हैं, जिसका इस्तेमाल आपका ई कॉमर्स में किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट कुड बी थ्रू नेट, इंटरनेट, that can be through cloud computing, anything. This helps in doing business transactions using electronic mode. बच्चों, अभी हम आपको लेक्चर ऑनलाइन ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज हेल्पिंग अस टू कैरी आवर बिजनेस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। These are known as EDI contracts, that is electronic data interchange contracts, or cyber contracts, you know that, और mouse click contracts। ये सब का नाम एक ही मतलब है, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स के तरह तरह के नाम, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें मुझे बच्चों ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं लगती, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है किसी को, तो विद इन 30 सेकेंड्स टाइप कर दीजिए शॉर्टकट में, यस नो आंसर भी दे दीजिए, अगर नहीं है डाउट तो नो लिखिए। सो बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड express contract, we discussed implied contracts, we discussed
टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, quasi contract. These are the four main contracts आप बोल सकते हो. ये four main contracts हैं. Okay. ई कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन एंगल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसके ऊपर के हैं. ओके, सो कोई डाउट नहीं है बच्चों. यस, वेरी गुड. चलो नाउ बच्चों, नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिस्कशन है, नेक्स्ट डिस्कशन जो हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसका बेस होगा परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस. ओके, पहला था वैलिडिटी एनफोर्सिबिलिटी, दूसरा था अपना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग टू सीए स्टूडेंट्स. बच्चों सबसे पहले मैं सीए स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ. बच्चों एग्जाम में आपको ये 5 to 6 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है. एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. सो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, if they are asking on the basis of performance, now we are going to discuss those contracts. If they are asking on the basis of formation, तो अभी अभी हमने पढ़ा. अगर वो पूछेंगे on the basis of validity or enforceability, तो we have different types of contract, valid contract, void, voidable, you know that. तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है. मैंने देखा ये पुराने स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन, परफॉर्मेंस वर्ड एंड फॉर्मेशन वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग. बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पूछा तो परफॉर्मेंस का लिख के आते हैं कुछ लोग, परफॉर्मेंस पूछा है तो फॉर्मेशन लिख के आते हैं. तो ये मिस्टेक आप नहीं करोगे. ओके, सो जहां मिस्टेक हुआ है मैंने आपको अलर्ट कर दिया है. नाउ बच्चों, लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी हैव एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप कुछ नोट डाउन कर रहे हो, अगर आप कुछ नोट डाउन कर रहे हो नोटबुक वगैरह या साइड में कुछ बच्चों, तो आपके अकाउंटिंग भाषा में अगर मैं बोलूं व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं कहूंगा कैश सेल. आपको देखो ना, अकाउंट्स टीचर ने पढ़ा होगा 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, क्रेडिट सेल एंड कैश सेल. कैश सेल में क्या होता है, प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट आता है अपने को. तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब both the parties in a contract, both the parties in a contract, दोनों पार्टियों ने अपना अपना एक्ट पूरा किया, दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, बरोबर है. ऐसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. अब बच्चों कैश सेल में क्या होता है, आप मेडिकल स्टोर में गए, काउंटर पर यू डिमांडेड सम मेडिसिन, आपने कोई मेडिसिन डिमांड किया, सामने वाले मेडिकल स्टोर वाले ने आपको मेडिसिन दिया, उसने आपको सामान दिया, आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, मैटर खत्म. दोनों पार्टियों ने अपना अपना एक्ट पूरा किया. दैट मीन्स इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. और आई कैन पुट इट इन अदर वर्ड्स, ध्यान से सुनना, इट इज कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. It is contract with executed consideration. So either you call it as executed contract or either you call it as contract with executed consideration. Both are one and the same. Okay, so best example to remember is cash sale. Immediately you get goods for consideration of cash. कैश दिया, गुड्स लिया, गुड्स दिया, कैश लिया, एग्जीक्यूटेड. दोनों पार्टियों ने अपना अपना काम कर दिया है. ओके, तो बच्चों मैं अभी रीड करूंगा तो आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल एक नया वर्ड आएगा जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में, एंड वो आने वाले लेक्चर में आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा जब सेकेंड टाइम आपके सामने आएगा. लेट अस रीड. ओके,
स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना नोट्स क्या है? ओके। तो बच्चों, व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? द कंसिडरेशन इन गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फोरबियरेंस। मैं जिस नए शब्द की बात कर रहा था कि मैं एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा इसमें, दैट वाज फोरबियरेंस। आप बोलेंगे सर व्हाट इज फोरबियरेंस? फोरबियरेंस इज नथिंग बट नेगेटिव एक्ट। एक होता है पॉजिटिव एक्ट, एक होता है नेगेटिव एक्ट। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव एक्ट नेगेटिव एक्ट नहीं समझा हमको, तो लेट अस पुट इट इन अदर वर्ड्स। बच्चों, आई ऑफर टू सेल, मैंने कहा मैं ऑफर देता हूं मेरा कार बेचने का फॉर 10,000, सेकेंड हैंड कार है, एंड आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने आपको कार हैंड ओवर कर दी, आपसे कैश ले लिया। इसमें क्या था? आई ऑफर टू सेल माई कार, दिस इज पॉजिटिव एक्ट। इसमें आपको कुछ नेगेटिव एंगल नजर नहीं आ रहा है। देखो, ये एक पॉजिटिव ऑफर था जिसको पॉजिटिवली आपने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स ऑल, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ऑफर जब हम देते हैं तो उसमें कुछ नेगेटिव एंगल रहता है ऑफर में, एंड अकॉर्डिंगली यू एक्सेप्ट दैट। जैसे कि मेरा आपको ऑफर देना, मैं आपसे कह रहा हूं कि आई प्रॉमिस नॉट टू फाइल सूट इफ यू पे माई आउटस्टैंडिंग अमाउंट। एज अ क्रेडिटर मैं अपने डेटर से क्या कह रहा हूं? एज अ क्रेडिटर मैं अपने डेटर से क्या कह रहा हूं? मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा, नहीं करूंगा केस, इफ यू पे माई आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो इसमें आपको जो मैंने ऑफर दिया वो पॉजिटिव ऑफर लग रहा है कि उसमें नेगेटिव ऑफर है? बच्चों, किसी के लिए कुछ करना अगर कंसिडरेशन है तो किसी के लिए कुछ करने से मना कर देना भी एक कंसिडरेशन है। ओके, तो मेरे इस ऑफर में क्या था? आई ऑफर नॉट टू फाइल सूट, नॉट टू फाइल सूट if you pay my outstanding amount. So this was the example of forbearance. क्या बोला बच्चों मैंने? This was the example of forbearance. ओके, एंड आपने मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आप मेरी आउटस्टैंडिंग मनी पे करेंगे, एंड क्योंकि आप मेरा आउटस्टैंडिंग मनी पे कर दिए, आई विल नॉट फाइल सूट ऑन यू, मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा, दैट्स ऑल। कंसिडरेशन हो गया। आपसे पैसा लेकर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं? तो आई एम नॉट गोइंग टू फाइल सूट ऑन यू, आई एम नॉट गोइंग टू फाइल सूट ऑन यू। इज दैट ओके? बच्चों, फोरबियरेंस वर्ड मतलब एक प्रकार का नेगेटिव ऑफर, बरोबर है, नेगेटिव सेंस में ऑफर है जिसे आपने एक्सेप्ट कर लिया। कोई डाउट है क्या इसमें? देखो, यस एनी डाउट बच्चों? यस नो में आंसर दो। जरा भी कंफ्यूज कर रहा हो टर्म तो वापस पूछ सकते हैं बच्चों, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन।